Hi everyone, good evening. Hi Manjot, hello Sushma, hello Sumit, hello Najwa Rislan. How are you all? Hi Sonia. Hi everyone. Good evening. I hope the weekend is treating you all well as of now, unless you people have entered my class, right? Just a joke. The students who are new to me and the students who haven't spoken to me even once can just introduce themselves to me by saying hi. Just let me know where exactly are you from and are you preparing for GT or academic. That would be great. Hi Abdul, hello Bindu, hello Brahimi. I think you people haven't attended any of my classes yet. I'm gonna wait for like 3-4 minutes so that the rest of the students can also join the session. Once they have all joined, I'll start with the class. Hello, can you hear me, guys? Hearing you, ma'am, Yeah. loud and clear. Okay, Yes, that's ma'am, we can hear you loud and okay. clear. Cool. No, few of the students texted me that they are unable to hear me properly. So the thing is that I can see a lot of students haven't activated their mic yet. So if you haven't activated your mic yet, you won't be able to hear me. Okay, let me share that as well with you, Zarana. Just allow me 1 second. I'm gonna share you the password for that. I have shared the password with you already. That's India at the rate of 123 with capital I. So, how many of you actually think that match the heading question type in reading is actually tough? Hi, Manoj Thakur, welcome to the session. How many of you think that? Because, see, before I start the class, let me just introduce myself to you. My name is Sonia Luthra, and if you have heard of an academy, I'm one of the top five in like I'm one of the India's top five educators on an academy in IELTS category, and I do take my classes online as well, apart from an academy. Okay. And my overall score is 8.5 in GT and 8 in academic. Today's class is gonna be about reading, match the headings type of questions, and whosoever wants to speak can unmute themselves and speak. Like if you have any doubt or if you would like to say anything, just raise your hand. Once I'll tell you speak, you can go ahead and unmute yourself and speak. Okay. So let's wait for another 1 minute. After that, I'm gonna start with the class. So before I start the class, can you guys tell me that how many of you actually face problem with this type of question in reading? And I hope you all are comfortable me talking in English, or do you want me to switch to English and Hindi both? Whatever you people are comfortable with, I am okay with that.
And I don't like my class to be silent. I want people, like, I want you to speak at least. Instead of typing, you people can speak actually. It is better to speak in English because our purpose here is to have good command over English language. Understood. Absolutely correct. But while I am explaining, I might switch to Hindi because there are some concepts that you would need to understand and you might not be able to understand properly that in English. Okay. So that's not going to be so frequent, but yes, I'm going to do it a little bit. Okay. Switching off English to Hindi and Hindi to English. Okay. Let's quickly start with this session. Hi, everybody. Good evening. And let's quickly start with the session. So, one of you please tell me how exactly do you people deal with match the heading types of question in reading? Just quickly tell me the steps that you follow. Any one of you who have taken their IELTS exam before or is practicing can tell me what are the steps that you have been following till now to solve these type of questions. Manjot, maybe you can try, or Zarana, anyone. Ma'am, I'm appearing IELTS for the first time, so I don't know how to deal with those questions. In fact, for reading session, I'm attending this lesson for the first time. Okay, cool. What about anybody? Abdul, would you like to go ahead and tell me what are the steps you have been following till now for this particular type of questions in reading? Or maybe Bindu, you can tell me. Anyone, whoever, I need volunteers. Ma'am, Abdullah Ali speaking. Yes, please. When I start to match from for reading practice, at first I read out the questions. That means A, B, C, D, E, F, at least 4, and then I go to the essays. Then I try to skim and get the main theme, and then I try to match with the answer. By this way, I follow match. Okay. Anybody else? Ajay, what do you follow? If you can speak. Yes, ma'am. Ma'am, what I do is normally I read the question and I look for the sentence which is in the paragraph. So I read through the paragraph and I look for the similar words which are there in the question, and that's how I match. Okay. Okay, cool. So most of you see the problem here is why this, like most of the students who face problems in reading session is because of two types of questions. First is true false not given. I think I have already taken a session on true false not given on my YouTube. If anybody has missed it, you can definitely go and watch it offline because the session is still there. Like its recording is still there on YouTube. Second question is match the heading types. And most of the students come to me and tell me that while doing this particular question, they spend a lot of time. And why do they spend a lot of time? Because they start reading the passage line by line. Somebody said skim. I have, heard this word skimming and scamming, scanning and skimming. Do you think that scanning and skimming is the only two tools which are going to help you solve your reading? No. वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे लोकेशन तक फाइंड करने में. They will lead you to the correct location, but then at the end of the day you would need the understanding, you would need the paraphrasing, then only you will be able to solve these type of questions. So let me tell you one thing here very clearly, that when it comes to reading, every single reading type of question demands for a different skill set. Okay. And this particular question demands the kind of skill set which you would need to solve this particular question is coherence and cohesion. I think you all have heard about coherence and cohesion in your writing module, isn't it? What is Yes, coherence ma'am. and cohesion? Uh, coherence and cohesion means whatever I am trying to explain here, that should be logical, and when it is logical, then I should obviously
write down is chronologically. So it may be sometimes we may skip anything, or sometimes we may added something which is not relevant for the topic. So I think that is coherence and cohesion for writing task. Absolutely. So this is absolutely correct that coherence and cohesion means that whatever is being written is well connected and logically connected with one another, and they are following a proper flow. If you are writing in positive, you should be using proper connectors to switch from positive to negative. That exactly what it means. In my previous writing session, I might have told you what PEES is, wherein P stands for your main point. In a writing body paragraph, P stands for your main point. So here in this question, wherein we have to match a question, a paragraph with a heading, it clearly means that you are basically looking for what? You're basically looking for the main point of that particular body paragraph. As I always say, that every single body paragraph contains only one main point, and the purpose of this particular question type, match the headings, is to find that one main idea of the whole paragraph. Got my point? So this was the basic concept and the skill set that you would need before you try to solve these type of questions. Okay. Now, if I talk about the steps, what exactly you're going to follow is, for any kind of reading question, the first step that you need to follow is read the title of the paragraph. Why do you need to read the title of the paragraph? Because reading the title of the paragraph will give you a gist about the entire passage. If the passage talks about learn from the Titanic, if you have something, a paragraph which is named as learn from the Titanic incident, just by reading the title of the passage, you are aware, you got an idea that the entire passage is going to talk about how exactly the Titanic sunk, what exactly were the practices that has been done at the time of the Titanic incident and to save it, and what were the things that has been ignored, right? So the kind of words that you are expecting in this passage, just by reading the title of the passage, you will know it by just reading the passage title, isn't it? So reading the title of the passage will be the first step for any reading question. Now, coming to the second point, after reading the passage, go to the headings. Let's go directly to the headings. Now read the heading one by one. While you're reading the headings, third step is going to be make the keywords. But one thing you have to make sure while making the keywords, do not make any keyword that matches with the title. Can anybody tell me the reason for this? This is the biggest mistake ever that any student can do in this type of question, that while making the keywords, they make the keywords which are already there in the title. What exactly going to happen if you make any keyword which matches the word which are there in the title of the passage? Can anybody tell me what is wrong in this? Do you find anything wrong in this? The third point? बताइए किसी को Because the hot passages, हाँ जी, I can't hear you बच्चे. the hot passage is telling about the same thing, and maybe Okay, somewhere close. Let me tell you in why. this, in the same passage there will be maybe Okay, I got it. maybe that same word is repeated 3 or 4 times. Not 3 or 4 times, but more than, like, I would say, okay, as I told you, हमने title क्यों पढ़ा था? We read the title because we wanted to know what kind of the passage this is and what kind of words are going to be there in the passage, right? अगर मैंने किसी
पैराग्राफ को कोई टाइटल दिया, इट मींस उस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया है जो टाइटल मैंने दिया है। इसका मतलब जो टाइटल में वर्ड्स है वो हर दूसरी लाइन में आपको रिपीटेड मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? द वर्ड इंसिडेंट, द वर्ड लर्न, द वर्ड टाइटैनिक विल बी रिपीटेड इन एवरी second line of the passage, isn't it? If the words which are there in the title are going to repeat every single or every second line, do you think that you'll be able to find the correct location of your answer ever? Yes, no? No. No, right? So it means that your keywords has to be unique. Your keywords has to be unique, which means that कोई भी टाइटल में जो वर्ड है और उसका सिनोनिम, किसी भी टाइटल जो आपके वर्ड्स हैं टाइटल में, उन वर्ड्स का सिनोनिम और उससे मिलता जुलता हुआ कोई भी वर्ड आपका कीवर्ड नहीं बन सकता। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न इन टुडेज क्लास। ठीक है, अभी तक हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए। रीड द टाइटल, go to the headings, read the heading one by one and try to make the keywords. While making the keywords, the thing that you have to make sure is that do not make any keyword that matches with the words that are present in the like in the title of the passage if the title is given. Now, 4th point, look for the synonyms of the keywords that you have already made. अब आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स आपने बनाए हैं हेडिंग वाइज, आपको उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को अपने माइंड में रखना है। यस पार्थ, टेल मी, आपको कुछ पूछना है पार्थ? पार्थ पांड्या, यस यू कैन स्पीक इफ यू वांट टू, बिकॉज यू रेज्ड योर हैंड। I guess no, so I'm proceeding now. Yes, so आपको क्या करना है, for example मेरा कोई keyword बना old, okay, old is one of my keywords. Now I'll be thinking of the synonyms of the word old. Old का synonym क्या होता है? Ancient. Ancient, yes, very nice. Any other? Obsolete. Yes. Obsolete. Anything else? Aged, right? So these are the words that are similar to the word old. Now, what is your next step? Once you have made the keywords, you have thought of the synonyms of the keywords. The 5th step is go to the passage and scan for the keywords and its synonyms, right? आपको अब क्या करना है, उन कीवर्ड्स को और इन कीवर्ड्स के ओल्ड को, जनरली 90% आपको ओल्ड वर्ड आपके पैसेज में नहीं मिलेगा। आपको किस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे, जो सिनोनिम्स हमने सोचे हैं, एंशिएंट, ऑब्सोलीट, एज्ड। लास्ट पॉइंट इज द पैसेज इन विच द कीवर्ड्स आर रिपीटेड द मैक्सिमम टाइम would be the correct answer. Okay, so जिस पैसेज में सबसे ज्यादा बार आपका कीवर्ड रिपीट होगा या उसके सिनोनिम्स या उससे मिलते जुलते वाले वर्ड्स रिपीट होंगे, वो हेडिंग मैच करेगा उस पैसेज से। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज 6 स्टेप्स। एक बार फटाफट just go through these 6 steps and I'm gonna directly jump to the questions now, how exactly these steps to be applied, right? Right, ma'am. सुषमा and Manjot, सुषमा, मंजोत, सुमित, आप लोगों को समझ आ रहा है ये सारे के सारे steps? Are you able to understand? Are you able to relate these 6 steps जो भी मैंने अभी बताए? Yes, Sonia. Cool. Yes, and Manisha, very nice. Antique and one of the words. Yes, Manisha, this will be in every single case. ये जो questions होते हैं, match the heading, ये as I told you starting में class में,
कि हर रीडिंग का एक क्वेश्चन आपके एक स्किल सेट को टारगेट करता है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इसी स्किल सेट पे टारगेट कर रहा है कि क्या आपको वो मेन आइडिया ढूंढना आता है। वो मेन आइडिया आप किस बेसिस पे ढूंढोगे? सिनोनिम्स के बेसिस पे, पैराफ्रेजिंग के बेसिस पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड को और किस किस तरीके से बोला जा सकता है पैसेज में, ठीक है। अगर आपको ये चीज आती है, आपका आंसर कभी भी मैच द हेडिंग्स में गलत नहीं होगा, एंड इट विल कंज्यूम लेस टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप कोई ये करोगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वंस यू विल गेट एक्वेंटेड विद इट, वंस यू विल गेट हैबिचुअल ऑफ इट, इट विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू। आप लोगों के आंसर कभी गलत नहीं होंगे, और हर बार आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। Just let me know once you have gone through all these 6 steps, then I'm gonna move to the next thing. Paras, are you here in the session? Okay, yes, Paras. Are you able to understand these 6 steps? Yes, Paras, I'm going to give you a lot of examples. Don't worry. Not one, but I'm going to give you a lot of examples. We are going to solve a lot of questions together in this session. Done with all these 6 steps. If anybody wants to take a screenshot of the 6 steps, you can definitely go ahead and take a screenshot, because we would need these steps at the later part of the session, okay? So, are we all ready to do some questions now? Let me quickly share my slide with you. Before we start the question, I would like to help you with some more things that would help you get your match the heading answers perfectly all correct and in no time. Step 1, as I've told you, read the title of the passage. Second, read the headings and mark the keywords. Make sure to avoid making keywords similar to the title. Write the synonyms of the keywords next to them or keep them in your head, whatever suits you best. Scan for the exact word or the synonym of it in the section of the passage. Once you get those words, think. There is a possibility that in 2 different passages, you will get the same synonyms. But which one exactly you're going to choose? Anybody? Ajay? Which one do you think I'm going to choose? If I have 2 different section of the passage wherein I can get the same synonyms, which one would be my answer? It will be the paragraph which have the same, in which the same word has been repeated more than once. Not more than once, but the maximum time. Maybe Maximum one time. passage in which the word is repeated 3 times. There is another passage wherein the word is repeated 6 times. So the one in which the word is repeated 6 times is going to be your answer. And this type of, you can say, confusing questions would be there in your exams, right? So just to, confuse you. Yes, ma'am. Now, what exactly do we need? As I told you, repetition is the most important part of this particular question, because I would be needing the repetition. Repetition किस forms में मिलेगा? Synonyms की form में, paraphrasing की form में, contextual meaning की form में. There is a possibility कि आपको exact synonym ना मिले, but meaning बिल्कुल same होगा, ठीक है? Now, first तो I think point में किसी को कोई problem नहीं है. Is there any one student? Is there any other student जिसको first point में कोई problem है? Anyone जिसको repetition नहीं समझ आ रहा हो? अगर नहीं समझ आ रहा, let me know. Otherwise, I'll move to the second part, which is connotation and tense. फैजल, I think आपका जो screen है, video है, वो off है, I guess. That is why आप शायद देख नहीं पा रहे हो slide. I think rest of the students can see the slides clearly, isn't it? Yes. Yes, ma'am. Okay. So the first point is clear to everyone, I guess. Repetition, in the form of synonym, in the form of paraphrasing, or in the form of contextual meaning. Now, coming to the second part, what is connotation? Can anybody tell me what is connotation? Tone of the sentence, sir. Example, please.
Any example for connotation? Sorry to interrupt, Sonia. Someone is asking about contextual meaning as well in the chat. I will explain you what is the contextual meaning. Firstly, tell me what is connotation. Maybe the sentence is saying in a positive way or negative way, Okay, positive tone or negative. got it. Exactly. So contextual meaning, okay. Whosoever is speaking, I can't hear the voice because there seems a very static sound. Yes, Faisal, if you want to say something, please speak. Till the time, I'm going to write 2 sentences. Contextual meaning. Okay, let's talk about what the contextual meaning is. Okay. Okay, this is the first sentence. Most of the saints were happy, or maybe are happy, that they are now allowed to visit the sacred part of the temple, right? Another sentence says, very few saints were unhappy Now read these 2 sentences and tell me, do they give you the same meaning? Most of the saints are happy that they are now allowed to visit the sacred part of the temple. Very few saints were unhappy that they are now allowed to visit the sacred part of the temple. The क्या इन first, दोनों sentences का meaning No. बिल्कुल same है? no, first sentence नहीं is है, it's positive. not same. Read the sentences carefully. It's the Read same. this. It's the same, ma'am. It's exactly the same. Yes. It's exactly the same. पहला सेंटेंस बोल रहा है बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनको जो खुश थे इस बात से कि अब उनको उस पार्ट में जाने को अलाउ कर दिया गया है जहां पे उनको पहले नहीं जाया जाता था. अगर बहुत सारे सेंट्स हैप्पी हैं तो इसका मतलब थोड़े से साधु होंगे जो अनहैप्पी होंगे इस बात से. दिस इज व्हाट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज. दोनों में ऑपोजिट यूज किया है हमने, ये सिनोनिम्स नहीं है. Happy is not the synonym of unhappy. Most is not the synonym of very happy. But then this sentence is true. ये आपको एक true false not given की भी एक trick है. I don't know, मैंने अपने पिछले previous session में आप लोगों को ये नहीं बताया था because I haven't taken the true part. मैंने सिर्फ आपको not given और false बताया था, right? आप लोगों को एक सिंपल मैथ्स पता होगा, जब भी हम 2 नेगेटिव्स को ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है, करेक्ट? तो यहाँ पे मुझे 2 नेगेटिव्स मिले हैं सेंटेंस में. आई हैव गॉट 2 नेगेटिव्स. पहला मोस्ट की जगह वेरी फ्यू, हैप्पी की जगह अनहैप्पी. तो ऐसा सेंटेंस आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में जब आपको 2 नेगेटिव्स मिलते हैं तो आपका आंसर हमेशा ट्रू होता है, विच मीन्स दैट दोनों सेंटेंसेस आपको सेम मीनिंग दे रहे हैं. ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का अब मतलब आपको सबको समझ आ गया कि सेम ही बात को किसी दूसरे तरीके से बोला जाता है लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम होता है. पैराफ्रेजिंग भी बिल्कुल इसी को बोलते हैं कि सेम बात को अपने डिफरेंट वे में बोलने को हम पैराफ्रेजिंग या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं. क्लियर डाउट? जिसको भी डाउट था कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का, नाउ आई होप इट इज क्लियर to everyone. Is it? Yes, ma'am. Okay, now I was talking about the connotation. Now what do you mean by connotation? Connotation, somebody told me tone. Exactly, tone of the statement, या फिर we can say the tone of the word. Okay, which means positive है या फिर negative है. For example, if I talk about the word beautiful,
Beautiful gives me a positive connotation. Dishonest gives me a negative connotation. Okay. अब आपको connotation के basis पे match the headings कैसे help करेगी? Okay. There were like 6-7 headings. There were like 6-7 headings. Okay. So अभी हमने रिपीटेशन किया था. एक दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. एलिमिनेशन मेथड में हम कॉनोटेशन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको ए पैसेज मिला. ए पैसेज वाज टॉकिंग समथिंग अबाउट पॉजिटिव टोन. ओके, कुछ पॉजिटिव बात हो रही थी ए पैसेज में. ओके, बी पैसेज में आप गए, आपको बी पैसेज में भी कुछ तो पॉजिटिव मिला. राइट. अब यहां पे बात क्या हुई, आपको बी के बाद जाते हैं हम सी पैसेज पे, सी सेक्शन पे. हम यहाँ सी सेक्शन में गए. सी सेक्शन में बात हो रही थी नेगेटिव की. अब ये जो हेडिंग्स थी मेरी यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्लियरली टोन के बेसिस पे पता चल गया कि ये जो सी वाला है, द सी पैसेज इज गिविंग मी अ नेगेटिव कॉनोटेशन. एंड ये जो हेडिंग्स थी, इन हेडिंग्स में से सिर्फ एक ऐसी हेडिंग है जो मुझे नेगेटिव कॉनोटेशन दे रही थी. तो आई थिंक एक स्टूपिड बच्चा ऐसा होगा या एक स्टूपिड पर्सन ऐसा होगा जो 10 की 10 हेडिंग्स को पढ़ेगा और 10 के 10 सेक्शन ऑफ द पैसेज को पढ़ेगा, फिर उस नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मैच करेगा. इजंट इट? बट हम लोग ये स्टूपिडिटी और ये सिली मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि हमें कॉनोटेशन का स्टेप नहीं पता. हमें पता ही नहीं है कॉनोटेशन होती क्या है. अब जब मैंने आपको ये चीज बताई, आप अपने माइंड में रखोगे कि while I'm going through the headings, I will pay attention to the connotation of every single heading and I will pay attention to the connotation in the passage. If I get any negative connotation, I will search for the heading जहाँ पे मुझे negative connotation मिलेगा. अगर मुझे दोनों और मुझे एक ही heading मिल रही है जहाँ पे negative connotation की बात हो रही है, तो definitely मैं उसको match करूंगी ना. Why would I go and read all the section of the passages? Why would I go and read all the headings? Isn't it? So connotation का आपको यूज समझ आ गया कि एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे कॉनोटेशन को यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोन. यस, नो, मे बी. आपके कैम्ब्रिज में, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं जहां पे आपको सिर्फ एक ही हेडिंग मिलेगी जहां पे नेगेटिव टोन की बात हो रही होगी. या फिर मान लो आपको 2 मिल गई. अगर आपको 2 भी मिल गई, आपके लिए अब इजी है ना. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग from the 10, now you would be choosing out of only 2 negative tones. आपको 2 में से एक को सिलेक्ट करना है. अब बताओ 10 में से एक को सिलेक्ट करना इजी है कि 2 में से एक को सिलेक्ट करना इजी है? 2 में से एक को. सो आपने 8 को तो सिर्फ अपने कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे एलिमिनेट कर दिया. करेक्ट? राइट. तो एलिमिनेशन मेथड में हम कॉनोटेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. इसी तरीके से अगर अब मैं बात करती हूँ कॉनोटेशन की जगह आपके टेंसेस की. ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर रही हूँ. लेट्स टॉक अबाउट टेंस. ओके, आपको एक ऐसा पैसेज मिला. पैसेज में बार बार बात हो रही थी was, were, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, आपको बार बार was, were, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल रहा है, विच मीन्स ये पूरा का पूरा पैसेज कौन से टेंस के बारे में बात कर रहा है? टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस. मुझे एक हेडिंग मिली है. इन पूरे हेडिंग में से मैंने आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द हेडिंग्स एंड मुझे पता था ये एक हेडिंग जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रही है या फिर हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ अलोहा, ऐसे करके कोई हेडिंग था. अब एक बात बताओ, when you know that this entire passage is talking about past tense, आप इसको इसी हेडिंग से तो मैच करोगे बिकॉज हेडिंग भी पास्ट टेंस के बारे में बात कर रही है क्योंकि उसमें एक वर्ड है हिस्ट्री. पैसेज में बार बार was, were, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, इसीलिए ये इसके साथ मैच करेगा. क्या मुझे इसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत है? I will only be scanning for the words ना. मुझे बार बार दिख रहा है हर सेकेंड लाइन में was, were, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, ऐसी चीजें मुझे मिल रही हैं और एक ही हेडिंग है जहां पे मुझे हिस्ट्री के बारे में बात होती हुई नजर आ रही है. I'll clearly match it with this. क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा सोचा है, कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है?
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते, इसीलिए वो लोग अपना टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं इस क्वेश्चन में, और इसी वजह से उनका ये क्वेश्चन गलत होता है, उनको ये क्वेश्चन टफ लगता है। ठीक है जी। सो अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में बात करी है। रिपीटिशन, रिपीटिशन में किस किस चीज का रिपीटिशन? सिनोनिम्स, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ साथ हमें बात करनी होती है किसकी? पैराफ्रेजिंग की। एग्जैक्टली। उसके बाद हमने बात करी है कॉनोटेशन की, एलिमिनेशन के लिए हमने नेक्स्ट बात करी है टेंसेस की। सिमिलरली अगर आपको एक पैसेज मिलता है जहां पे हम बात करेंगे किसकी? फ्यूचर टेंस की, वहां पे लिखा है मे बी करके ऐसा कुछ वर्ड लिखा है, या फिर एक और चीज याद रखना, मे बी लिखा है, सजेशंस लिखे हैं, ठीक है, तो बताइए ये कौन से टेंस के बारे में बात कर रहा है? मे बी, सजेशंस, फ्यूचर टेंस, करेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक ग्रामर चीजें हैं जो आप सब लोगों को आती हैं, बट आप लोगों को इसको यूज करना नहीं आता कि कैसे अपने क्वेश्चंस में यूज करना है, करेक्ट। तो अब मुझे क्लियरली पता है, अब मैं हेडिंग में जाके कौन सी हेडिंग ढूंढूंगी? सिर्फ फ्यूचर टेंस वाली ढूंढूंगी। Why would I even go for the past tense? Past tense को तो मैं सबसे पहले एलिमिनेट करूंगी, क्रॉस करूंगी, देखना ही नहीं है। नेगेटिव कॉनोटेशन को देखना ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस पॉजिटिव कॉनोटेशन मिल रहा है मुझे, नेगेटिव कॉनोटेशन की बात नहीं हो रही। I'm only and only gonna search for the future tense। तो मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस रिड्यूस होते जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑप्शंस रिड्यूस हो रहे हैं, विच मीन्स दैट आपके सही आंसर के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और 100% आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब एक और चीज बताइएगा। ओके, मैंने सजेशंस की बात करी, ठीक है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्वेश्चन आपने करा है ना राइटिंग में सबने। अब जब हम किसी, मान लो क्वेश्चन का आपको कोई पैसेज मिला, साइंटिफिक पैसेज मिला है, वो बोल रहा है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके का कोई हेडिंग है, सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? In this passage they are going to talk about a problem। ये एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताना, इट्स अ कॉमन सेंस। आपको एक हेडिंग दे रखी है, हेडिंग में उन्होंने बात करे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स, ऐसा करके एक हेडिंग दिया है, ठीक है। तो ये हेडिंग कहाँ मिलेगी मुझे? Where exactly I'm gonna find this future perspectives wala heading in this type of a scientific passage wherein it's talking about a problem? In last para. Exactly, thank you very much। सीधी सी बात है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे what is the problem, what is the problem, प्रॉब्लम है क्या, फिर बात करेंगे why it is happening, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, लास्ट में ही तो बात करेंगे सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस मींस उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, राइट। तो जिसने भी ये आंसर दिया, आपने अभी दिमाग लगाया है, बट पहले जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्या उस टाइम पे आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? यस मैम। बहुत कम बच्चे सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, वेल एंड गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर अभी मेरे पास 23 स्टूडेंट्स है, आई कैन बेट ऑन दैट कि 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 23 स्टूडेंट्स ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है अपने टाइम को सेव करने के लिए और अपने आप को स्मार्टली प्रिपेयर करने के लिए कि हाउ एग्जैक्टली आप कितनी जल्दी आंसर ढूंढते हो। अब मुझे पता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हेडिंग, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई नहीं देखूंगी, आई विल गो टू डायरेक्टली द लास्ट वन, एंड मैं लास्ट में जाके आई एम गोना डायरेक्टली गो टू द लास्ट पैसेज एंड आई एम गोना चेक दैट yes it's talking about the future perspectives, yes it's talking about the suggestions, right, match, done, cool, yes। So this was the few things that you should need before you move to the match the heading types of questions. So we have talked about all the 3 types. Just to let you know that you can see my WhatsApp number here, 8588883984. If in case after the class you would like to talk to me, or if you would like to join my courses, you can definitely get in touch with me. You can either call me on this number, you can either WhatsApp me here. Okay, so now we're done with all the 3 things. Let me give you one more example here.
Okay. Okay. I have these headings. Okay. This is the passage name, the greenhouse effect. Okay. And these are the headings. Just look at the second heading. Just look at the second heading. The greenhouse. I've just told you in the beginning of the class that your keyword does not, your keyword, whatever the keywords you are making out of the headings, that should not match your title here, right? But if you see the title, the greenhouse effect, and the second heading, what should be your keyword? Because it's only two words, the greenhouse. We don't really have choice. I have to make the greenhouse as my keyword, but then you might be thinking कि अभी तो मैम ने मना किया था कि नहीं हेडिंग्स में तो कोई भी हेडिंग का वर्ड तो कभी भी कीवर्ड बनना नहीं है, तो मैं ग्रीन हाउस को कैसे अपना कीवर्ड बनाऊंगा, राइट? तो यहाँ पे ये जो सेकंड हेडिंग है, कोई मुझे बता सकता है कि सेकंड हेडिंग विदाउट लुकिंग एट द पैसेज, ये जो सेकंड हेडिंग है ये कौन से सेक्शन के साथ मैच करेगा? एनी आइडिया? एंड व्हाई? Probably first para, Why? Give me the reason. because topic will discuss about the greenhouse and why it is important probably. And who told me this answer? Just tell me your name. Parth. Okay, Parth. Very nice, Parth. That's absolutely correct. मैं आप लोगों को I would like to take you back to the lane of memories when we used to be in class 10th or 11th or 12th. Science background के students, ये भी छोड़ दो, 10th class 9th class में आप लोग को याद होगा, whenever we used to start any new chapter, let's say for example a science chapter named velocity, सबसे पहले क्या होता था? वेलोसिटी के चैप्टर में फर्स्ट जो पैराग्राफ होता था वो पहले आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन देता था, करेक्ट? व्हाट इज वेलोसिटी? ऐसा तो नहीं था कि चैप्टर का नाम है वेलोसिटी, उसके बाद डायरेक्टली हम स्टार्ट हो गए v इज इक्वल टू ma, ऐसा नहीं होता था कभी, है ना? वो पहले बताता था वेलोसिटी क्या होता है, फिर वो बताता था एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर वो बताता था मास क्या होता है, फिर वो जाके एक इक्वेशन देता था, करेक्ट? सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, अगर आपको कभी भी इस तरीके का कोई पैसेज मिले जहां पे आपका टाइटल हो, टाइटल के ही जो मेन वर्ड है वो एज अ हेडिंग हो, इट मींस दैट द हेडिंग want you to look for a paragraph in which greenhouse is defined, ठीक है? जिसमें ग्रीन हाउस की डेफिनेशन दे रखी होगी आपकी, और वो डेफिनेशन हमेशा किस में होगी? फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, ठीक है? ऐसा नहीं है, अब देखो जैसे कि एक ये है, लेट मी शो यू, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगी, उसमें भी इसी तरीके का वर्ड है. मान लो यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम होता ग्लोबल वार्मिंग एंड यहाँ पे होता ग्रीन हाउस, तब क्या फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिलता? तब भी क्या फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिलता? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी आपको डेफिनेशन ही ढूंढने को बोल रहा है. Yes, Akash, it would 100% be applied to any question. जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन ले आइए, उस पे वो अप्लाई हो जाएगा मैच द हेडिंग्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था दैट अगर यहाँ पे सेकंड में ग्रीन हाउस लिखा होता और आपका ये जो पैसेज का टाइटल है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जगह द ग्लोबल वार्मिंग होता, तो भी क्या मुझे उस सेकंड हेडिंग को फर्स्ट से मैच करना था? यस, नो? No. प्रोबेबली यस, इट डिपेंड्स. मैं चेक करूंगी फिर कि क्या ग्रीन हाउस की डेफिनेशन मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में मिल रही है कि नहीं. फिर 100% श्योर नहीं होगा मेरा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि डेफिनेशन कौन से बॉडी पैराग्राफ में मिल रही है. गॉट इट? सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हियर इज दैट व्हेनेवर, आकाश ऐसा नहीं होता है, आपका जो आईएलटीएस का एग्जाम है वो एक सर्टेन पैटर्न पे डिफाइन होता है, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैं आपके कैम्ब्रिज के किसी भी कैम्ब्रिज को उठा लीजिए, आप 404 उठा लीजिए, आप बैरन उठा लीजिए, आप कोई भी अच्छा मटेरियल उठाएंगे ना आपको, और जिस तरीके के लेवल का आपका एग्जाम आता है वो सारे ही के सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक आपका जो रीडिंग है ना, reading is not about how fast you read.
रीडिंग इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. आपको मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ, जैसे कि मैथ्स में होता था, जैसे कि फिजिक्स में होता था कि m इज इक्वल टू लाइक v इज इक्वल टू ma होता है. वो फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो v पूछ रहा है आपसे, चाहे a पूछ रहा है, चाहे m पूछ रहा है. करेक्ट. Similarly, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, these are just like the formulas and you can apply it on any question as far as you have understood the formulas perfectly. Got my point, Akash? कैम्ब्रिज में लगेंगी बेटा सुमित, कैम्ब्रिज के ही ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे कैम्ब्रिज से पिक किए गए हैं. ठीक है जी. अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आई थिंक सबको टिप्स एंड जितने भी अभी तक मैंने आपको टिप्स बताया, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट, राइट? नाउ क्विकली जंप टू फ्यू क्वेश्चंस. ओके, लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस. These are the 3 headings, 1, 2, 3. Quickly give me the keywords for first heading. फटाफट कीवर्ड्स बता दीजिए. हेडिंग फर्स्ट के कीवर्ड क्या हैं? आप लोग बोल सकते हैं. हाउ वाइल्ड लाइफ बेनिफिट्स फ्रॉम बिग ट्रीज. वाइल्ड लाइफ. ओके, साथ में सिनोनिम्स बताएंगे मुझे. वाइल्ड लाइफ का अगर आपने कीवर्ड बनाया, आपको माइंड में उसी के साथ उसका सिनोनिम भी आना चाहिए. Benefit. Big trees is one of the keywords, Zarana. Very nice. Wildlife is gonna be one of the tone कैसी है इसकी? What is the tone? Positive. Yes. Okay. Ben, यहाँ पे आपके 3 keywords बनेंगे. फर्स्ट वाला मैं करके बताती हूँ, wildlife. सेकेंड कीवर्ड बनेगा benefits and थर्ड बनेगा big trees. It's giving me a positive connotation for sure. Wildlife के synonyms बताइए फटाफट. Fauna. Give me the words, synonyms for wildlife. Biodiversity, animals, Fauna. okay. Fauna, ठीक है. Fauna. ठीक है. ठीक है. Okay. What about benefits? Advantages? Big trees means? Big trees means? Huge, tall. इस तरीके के वर्ड मिलेंगे. वाइल्ड लाइफ में आप लोगों ने बोला एनिमल्स, स्पीशीज, फौना, इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे. कम टू द सेकेंड वन नाउ. सेकेंड बताइए, कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन न्यूट्रल है इसका, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इट्स अ न्यूट्रल टोन. टोन से हमें कोई मतलब नहीं. मतलब अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स. बताइए सेकेंड वाले के. फैक्टर्स. आकाश, आप sometimes keywords are not given. What do you mean by that? आपको सेंटेंस में से कीवर्ड्स तो खुद ही बनाने पड़ेंगे ना. कीवर्ड्स कभी दिए थोड़ी ना होते हैं. हर सेंटेंस में नाउन तो होगा ही. नाउन के बिना आपका सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा? और अगर नाउन है तो इट मींस कीवर्ड है. आप लोगों ने शायद मेरी फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली, वो शायद अटेंड नहीं की. मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स मींस नाउन मतलब सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा ना बेटा. और सब्जेक्ट है तो मतलब कीवर्ड भी है. आपको कीवर्ड सही फाइंड करना आना चाहिए बस. वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगा. ठीक है. सेकंड का बताइए. आपका कीवर्ड बनेगा फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? Factors, very good. Reasons or things required basically. For what? For a tree to grow to a significant height. Significant height means again tall, huge. They're talking about the length of the tree, right? Big trees भी हो सकता है. Big, tall, huge, length. ये तरीके के words मिलेंगे. अब थर्ड पे आइए. थर्ड का कॉनोटेशन क्या है? They're talking about harm, which means it's Negative. a negative connotation. How other plants can cause harm. ये दो, ये पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल था, ये नेगेटिव था. अब इस पैसेज पे जाइए.
फटाफट हम यहाँ पे हम पैसेज रीड नहीं करेंगे. मुझे मिला बिग ट्रीज, मुझे मिला इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद लास्ट में मुझे क्या मिला, जस्ट सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लाइन को देखिए. अगर चाहते हो तो फर्स्ट लाइन रीड करो, लास्ट लाइन को रीड करो. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहीं से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या इसमें से कुछ क्या मैच कर रहा है. दिस अलाउज देम टू सस्टेन. सस्टेन इज अगेन अ पॉजिटिव वर्ड. एनिमल लाइफ, Much of फॉरेस्ट. अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट लाइन से देखूं तो इन तीनों में से कौन सा वाला हेडिंग मैच कर रहा है. सिंस द फर्स्ट लाइन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव, लास्ट लाइन इज आल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव टोन. इन तीनों में से पॉजिटिव टोन वाला कौन सा आपका हेडिंग था, फर्स्ट First. वाला. अब first. मैं इसको कंफर्म करने के लिए बीच में कुछ वर्ड्स देखूंगी, फटाफट स्कैन करूंगी. क्या आप मुझे फटाफट देखकर बताइए. दे आर टॉकिंग अबाउट गिविंग शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर. They're talking about species, right? In every single line, they are talking about one or the other usage of the big Benefits. trees. So क्या अब कंफर्म हो गया, क्या ये फर्स्ट वाला था मेरा आंसर? एग्जैक्टली फर्स्ट वाला Yes. था. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? Any doubt to anybody? I don't think so होना चाहिए डाउट. Similarly, go for the next passage. इस पैसेज पे जाइए फटाफट. इस पैसेज पे फटाफट जाइए और बताइए. अब आपके पास फर्स्ट वाला तो डन है जी. अब सेकंड और थर्ड में बताइए कौन सा मैच कर रहा है. जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन. जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, यू विल हैव एन आइडिया कि कौन सा वाला मैच कर रहा है सेकंड और थर्ड में से. Second, of course, it's talking about really big, grow. इससे मैच कर रहा है. अब फैक्टर्स के लिए देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, 3 things. It need 3 things, right? It need 3 things. और आगे आपको 3 चीजों के बारे में बात करी गई है. So definitely second वाला मैच करेगा. और नेगेटिव टोन तो मुझे इस पैसेज में बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो ये वाला तो मैं एलिमिनेट ही करूंगी. तो बचता क्या है, सिर्फ ये वाला. वर्ड्स देखिए, सिग्निफिकेंट हाइट के लिए रियली बिग, और कौन कौन से वर्ड्स मिले हैं, हाई लैटिट्यूड्स, और कौन से वर्ड मिले हैं, जायंट स्टेचर, और कौन सा ग्रोइंग कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, बिगेस्ट ट्रीज. मिल गया रिपीटिशन, कीवर्ड्स के रिपीटिशन भी मिल रहे हैं, करेक्ट. प्रोवाइड के लिए, थिंग्स के लिए, सारे जितने भी कीवर्ड्स मैंने बनाए थे वो सारे के सारे कीवर्ड्स के मेरे को यहाँ पे सिनोनिम्स मिले, और वो भी रिपीटिशन मोड में. So do you think it is difficult now? Do you actually think this is difficult now? मुझे नहीं लगता ये difficult है. अभी आपको और एक एग्जांपल देती हूँ. देखिए, ये हेडिंग है, ठीक है. From the height of popularity. Height of popularity मतलब कौन सी टोन दे रही है, पॉजिटिव टोन. टू फॉल फ्रॉम फैशन मतलब नेगेटिव टोन. अब आप लोग को एक चीज समझ आनी चाहिए, जब भी मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही हूं तो बीच में किस तरीके का कनेक्टर चाहिए. मुझे कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए होगा. वो कनेक्टर कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पे, फटाफट बताओ कौन कौन से कनेक्टर आ सकते हैं यहाँ पे. However, very nice. However, But. जितने भी कॉन्ट्राडिक्टिंग, जितने भी मेरे कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर, लाइक बट, हाउएवर, whereas, इस तरीके के वर्ड्स मुझे मिलेंगे. तो अब मुझे इस पूरे के पूरे पैसेज में पहले तो ढूंढना है पॉजिटिव टोन, बीच में ढूंढना है एक कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर, उसके बाद ढूंढना है नेगेटिव टोन. ढूंढ के बताइए फटाफट. जस्ट गिव मी द वर्ड्स फॉर द पॉजिटिव टोन. कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जो आपको पॉजिटिव वर्ड्स दे रहे हैं, टोन दे रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड्स. 1 से 2 वर्ड्स बता दीजिए. यस, इवन दो, whereas, ये सब आपके कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स होते हैं. तो हमें इनमें से कोई भी एक कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर मिल रहा है. अब यहाँ पे देखिए आपको 2 जगह कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर मिल रहा है. एक ये मिल रहा है But and yet. एंड यस. ठीक है जी. येट से पहले क्या बात हो रहा है, माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मतलब नेगेटिव. नेगेटिव से स्टार्ट किया, येट आया, मतलब अब मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है, फुली फ्लेज्ड.
फुली फ्लेजेड मुझे पॉजिटिव मिला, यूथ क्रेज इज पॉजिटिव, 2 फेमस पीपल अगेन पॉजिटिव, ठीक है। बाद में मुझे मिला बट, अब यहाँ पे मुझे यहाँ तक मुझे पॉजिटिव मिल रहा था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ द पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी के लिए वर्ड मिला मुझे फेमस। अब बट के बाद मुझे नेगेटिव वर्ड मिलेंगे, कैसे नेगेटिव वर्ड्स मिले, कंप्लीटली डाइड आउट, ठीक है। उसके बाद कैसे वर्ड्स मिले, चीप, चीप, इजीली रिपेयर्ड, पॉवर्टी, अशेम्ड, ये सारे क्या थे, नेगेटिव वर्ड्स थे। मुझे इनको ढूंढने के लिए क्या पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा था, मैंने नहीं पढ़ा पूरा पैसेज, और आई थिंक आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा। आपको स्कैनिंग आती है ऑलरेडी, आपको किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपको स्कैनिंग सिखाई है। यहाँ पे सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट था कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स देखने थे, बीच में कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर देखना था, जो कि मुझे मिला। मुझे वर्ड्स मिले पॉजिटिव टोन के, मुझे नेगेटिव टोन के वर्ड्स मिले, बीच में कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर मिला, एंड आई एम सॉर्टेड। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव करेंगी, जो कि आप पहले। आकाश, आप मुझे एक बात बताओ, आपके एग्जाम के बाहर आने के बाद आपसे कोई पूछेगा उस पूरे पैसेज का एसेंस क्या था, या आपने पूरे पैसेज में क्या पढ़ा? I got 9 out of 9. My students got 9 out of 9 using the same technique. क्योंकि आपका पर्पस वहां पे आपको बाहर आके किसी को समरी नहीं बताना है अपने पूरे रीडिंग पैसेज का, और ना ही आपको वो समरी लिखने का कोई मार्क्स मिल रहा है या अंडरस्टैंडिंग का कोई मार्क्स मिल रहा है। आपको मार्क्स मिल रहे हैं आपके करेक्ट आंसर्स के, और वो करेक्ट आंसर वो भी आपको विद इन 60 मिनट्स करने हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली 45 मिनट्स का टाइम देती हूँ कि 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैं उनको कभी 60 मिनट्स का टाइम नहीं देती, क्योंकि एग्जाम टाइम पे, that is what Akash I told you in the beginning, if you have the same type of words, the tiebreaker is that you will have to choose the one passage wherein there are words repeated मैक्सिमम। जिस भी पैसेज में आपके वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम रिपीट हो रहे होंगे, आप वो वाला पैसेज चूज करोगे, दैट इज द टाई ब्रेकर। उस केस में भी आपको पैसेज का एसेंस समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अभी शायद हम में से किसी को नहीं पता कि ये पूरा पैसेज में क्या बात हो रही है, बट येट वी गॉट द आंसर करेक्ट, राइट? आकाश देखो, I have a question. यस प्लीज। Okay, I can see here in the third or fourth sentence there is but, the dance almost, and in the last sentence it is also used yet. So दो बार negative हो गया तो एक सेकंड सुनो। Connolly says yet eventually, यहाँ पे yet जो है वो but की तरह यूज नहीं हुआ है, वो contrasting linker की तरह नहीं हुआ। Clogs became associated with poverty. Again you are getting a negative point only, no? okay. उसने बोला, कॉनली ने बोला कि धीरे धीरे जो है वो क्लॉग्स पॉवर्टी से भी एसोसिएट होने लगे और लोग उसको पहनने के लिए शर्मिंदगी फील करने लगे। अब ये अशेम्ड वर्ड एंड पॉवर्टी, बोथ वर्ड्स आर नेगेटिव। क्या आपको यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है? येट इज नॉट यूज्ड एज अ कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर हियर। तो आपको देखो, बट जो होता है, येट होता है, उनके एक से ज्यादा यूजेज होते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आपने वर्ड देखा, दैट इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव पेड अटेंशन टू द वर्ड येट, बट यहाँ पे येट आपको कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग दे ही नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले लाइन में भी वो नेगेटिव्स की बात कर रहा है। कंप्लीटली डाइड आउट, चीप इज अ नेगेटिव वर्ड है ना, उसके बाद भी वो नेगेटिव ही वर्ड्स की बात कर रहा है। अगर आपको इस येट के बाद नेगेटिव वर्ड्स नहीं मिलते, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम, बट द क्वेश्चन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे that your examiner wants you to find these words, तभी तो ये लिखे गए हैं ना। Got my point? Yes, so यहाँ पे yet negative को ही support कर रहा है। हाँ। सनी प्रजापति, आपका जो जीटी रीडिंग और एकेडमिक रीडिंग है, वो मैं अपने सारे जीटी रीडिंग स्टूडेंट्स को एकेडमिक रीडिंग की प्रैक्टिस कराती हूँ। रीजन बीइंग, जीटी जो एकेडमिक पेपर होता है ना, वो टफ होता है, और ये जो पैसेज अभी अभी हमने किया है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द जीटी पैसेज, नॉट फ्रॉम एन एकेडमिक वन।
मैं कभी भी अपने बच्चों को जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ जीटी स्टूडेंट्स को, कभी भी उनका जीटी का पेपर सॉल्व नहीं करने देती, बिकॉज जीटी इज वेरी वेरी इजी इफ यू कंपेयर इट विद द एकेडमिक वन. Once you are able to decode the academic one, GT would be a cakewalk for you. मैं जब उनका एग्जाम होता है, एग्जाम से 15 डेज पहले मैं उनको बोलती हूँ या 1 वीक पहले बोलती हूँ कि नाउ यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग जीटी सो दैट यू कैन गेट अ सेंस ऑफ इट. अदरवाइज एकेडमिक प्रैक्टिस इज मोर देन एनफ फॉर यू पीपल एज वेल. तभी उन लोग के 9 आते हैं ना. अगर आप जीटी प्रैक्टिस करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिकोड दैट क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी होते हैं. ओके, सो सनी, वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो. अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नहीं लगेगा टफ. वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर आप मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आप वैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको जीटी कभी भी इजी नहीं लगेगा. एंड आपको 6.5 के आपको 8 भी मार्क्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि आप टाइम बहुत सेव करते हो ना. एंड व्हेन यू हैव एन एम्पल ऑफ टाइम यू कैन रीरीड द क्वेश्चन अगेन अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया. जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं 60 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने में, क्योंकि उनको 60 मिनट्स लगते हैं बहुत कम 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. गॉट माय पॉइंट? बाकी जैसे आप लोगों को जिनको भी रीडिंग में प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो. Zarana, not daily, but yes, I tend to take few free classes whenever I get time, because most of the time I'm busy taking my classes for the students who have paid. तो मैं बीच बीच में ऐसे सेशंस कंडक्ट करती रहती हूँ, मास्टर क्लासेस, wherein the students who like round the globe can, you know, get some things which they have not get anywhere else. बट हाँ, अगर आप लोग को डेली क्लासेस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ज्वाइन माय पेड कोर्सेज. सनी प्रजापति, टास्क 1 का तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं कब क्लास लेने वाली हूँ, बट डेफिनेटली आई एम गोना टेक फ्यू सेशंस. मैं आप लोग, आई थिंक सब मेरे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे टेलीग्राम, पर्सनल टेलीग्राम पे आप लोग एडेड हो. अगर आप नहीं एडेड हो तो प्लीज एक बार ना मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी मेरा कोई भी सेशन होता है, मैं कभी भी कोई मास्टर क्लास लेती हूँ, कोई इवैल्यूएशन करती हूँ लाइव, आपको सबको उसका जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगा. ठीक है? आप लोग टेलीग्राम जो है वो मेरा ज्वाइन कर सकते हो. I think I did change the name of my Telegram group. Let me just share you the link. मैं एक बार आप लोग को ना अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देती हूँ. आप लोग प्लीज उस ग्रुप को एक बार ना ज्वाइन कर लीजिए. एंड वहां पे आप लोगों को जितने भी मेरी क्लासेस होती हैं उन सब का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा. और आप लोगों को अगर लगता है कि कोई स्पेसिफिक क्लास है जो आप लोग को चाहिए, या कोई कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को समझ नहीं आया, यू कैन लेट मी नो. हियर आई पुट द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप इन द चैट बॉक्स. हमारा एक फेसबुक पेज भी है IELTS सिंप्लीफाइड के नाम से. मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है जो मैं हैंडल करती हूँ IELTS सिंप्लीफाइड के नाम से. आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा कि कौन सी क्लासेस हैं. तो आई थिंक जो भी मैंने आप लोगों को आज बताया है वो सब आप लोगों को समझ आया, करेक्ट? I'm letting you know once again, if anybody of you is interested in taking the paid courses, अगर आप लोग को fully fledged course चाहिए पूरा का पूरा, या फिर आपको सिर्फ राइटिंग इवैल्यूएशन चाहिए, या स्पीकिंग इवैल्यूएशन चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की क्लासेस भी चाहिए, you can get in touch with me on my WhatsApp number which is there in front of your screens, 8588883984. That's my number. You can either call me or WhatsApp me. Okay, I'll see you very soon in my next classes. जो भी होगा उसका schedule आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मेरे मिल जाएगा, है ना? जो भी मेरी क्लासेस होंगी उन सब का लिंक और टाइमिंग आपको मिल जाएगा प्रॉपर्ली. मोस्ट प्रोबेबली सी गाइस, मैं एक्चुअली स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी. मैं अपने फेसबुक जो ग्रुप है IELTS सिंप्लीफाइड का, जो मेरा ग्रुप है,
वहां पे मैं बहुत जल्दी फ्री राइटिंग एवेल्युएशन स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं वहां पर और भी काफी सारी सर्विसेज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट उनको थोड़ा ना धीरे धीरे टाइम लगेगा, बिकॉज आई यू पीपल कैन अंडरस्टैंड सर्टनली दैट आई हैव टू अटेंड द पेड स्टूडेंट्स एज वेल एज। उसके साथ साथ ना जो चीजें होंगी वो, सिंस I was on a vacation for like almost 1.5 months and I came back after pretty long. So मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सारी सर्विसेज धीरे धीरे रिवोक करने में, बट डेफिनेटली जो भी होगा, जो भी मेरी फ्री सर्विसेज होंगी, वो सब आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू पता चल जाएंगी, ठीक है? तो ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू वांट द पेड कोर्सेज, you know where to get in touch with me. Okay, I hope you have had a good Sunday, good weekend. Rest of the students, मैं आप लोगों को, जो भी मेरे students हैं जो कल batch join करने वाले हैं, they can definitely join me tomorrow at 9 o'clock for the batch. Okay, bye bye, good night, enjoy your rest of the Sunday. Bye. Thank you, Good ma'am. night. You're welcome, Zarana. Thank you so much. Bye. Good night. Sunny, you can please, Sunny, please get in touch with me on my WhatsApp. I'll be able to tell you each and everything there, right? अगर नंबर नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए नंबर, ये रहा मेरा नंबर। आप प्लीज इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 8588883984। ओके, बाय बाय।